بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویورز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ریسرچ کرنی ہے سوشل سائنسز میں اسپیشلی، تو سب سے جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو مشکل سوال ہوتا ہے یا مشکل سچویشن ہوتی ہے کہ اسے کون سا ٹاپک رکھنا چاہیے، مطلب ریسرچ کے لیے کوئی کون سا ایسا پرابلم لیا جائے جس پر وہ ریسرچ کر سکے۔ دیکھیں، کچھ اسٹوڈنٹ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز جو ہے نا یا ان کے جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ ان کو ٹاپک جو ہے وہ دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس کی اپنی آبزرویشنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو لٹریچر کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ لٹریچر اسٹڈی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو پرابلمس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ارد گرد اپنے معاشرے میں پرابلمس کو دیکھتے ہیں، پھر اس پرابلم پر آپ لٹریچر سرچ کرتے ہیں کہ کتنا اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ ریسرچ ٹاپک فار ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ایون بی ایڈ ریسرچ اور بی ایس لیول ریسرچ۔ So, for every research, you can find out your research topic. تو چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف، میں آپ کو تمام طریقہ سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنا ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ سرچ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، the first question is how to find a research topic. This is our first question. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نیٹ پہ جائیں اور اب مختلف سورسز ہیں، آپ مختلف سورسز میں جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی پسند کے جو آپ کی انٹرسٹ ہے، جس میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس سے ٹاپک اس ورڈ سے ریلیٹڈ اب ریسرچز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کی انٹرسٹ ہے، جو آپ کے پرابلمس ہیں، اگر آپ نے کہیں اپنے معاشرے میں ارد گرد پرابلم دیکھا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ لٹریچر سرچ کریں تو آپ کو پرابلم ملے۔ یہ ایک ون میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سی ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسے، سپوز میں کہتا ہوں کہ جاب پرفارمنس، میں آپ کہتا ہوں کہ جاب پرفارمنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں سرچ کرتا ہوں۔ تو جاب پرفارمنس کا کس سے، ٹھیک ہے، اگر میں دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یا جاب پرفارمنس ہوتی ہے کہ ٹیچرز کی، کیونکہ ہم ایجوکیشن میں جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ جب بھی آپ کوئی ورڈ لکھیں گے، سپوز جاب پرفارمنس آف دی اسکول ٹیچرز اور ہیڈس اینڈ سو آن، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ آپ مختلف آرٹیکلز جو ہے نا وہ سرچ کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم کوئی آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی جو ہم نے پرابلم سوچا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ آرٹیکل جتنے آپ کو ملتے ہیں آپ اس کو اوپن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس نے جو کام کر لیا ہے، جو ریسرچرز نے کام کر لیا ہے، اب ڈیفینیٹلی ان سے کہیں نہ کہیں کوئی گیپ رہ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضرور اپنے آرٹیکل میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی نیکسٹ فیوچر ریسرچ کے لیے ریکمینڈ کریں گے کہ یہ کام نیکسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز یہ ہمارا ایک آرٹیکل ہے، ٹیچر جاب سیٹسفیکشن، دا امپورٹنس آف اسکول ورکنگ کنڈیشنز اینڈ ٹیچر کریکٹرسٹکس۔ اب اس کا اگر مین آپ نے پڑھنا ہو تو آپ اس کا پہلے ایبسٹریکٹ پڑھیں، آپ ایبسٹریکٹ کو آپ کو مین چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ اس میں کیا چیزیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک رزلٹ جو ہے انہوں نے دیا ہوگا، لیکن کیونکہ ابھی آپ ٹاپک سرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہر آرٹیکل کے اینڈ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سی ہم اس آرٹیکل کے اینڈ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سارا میتھڈالوجی، ویسے تو پورا آرٹیکل آپ کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اس میں پاپولیشن کیا تھی، سمپل کیا تھا، اس کا آبجیکٹو کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین چیزیں ہر آرٹیکل کی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
लेकिन उसका फ्यूचर रिसर्चेस देखा करें कि उसने क्या रिकमेंड किया। तो अगर तो आपकी आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड उसने कोई हिंट दिए हैं, तो फिर उस आर्टिकल को अच्छी तरीके से आप पढ़ लें कि वो क्या उसने प्रोसीजर अडॉप्ट किया और कैसे जो है उसने अपनी रिसर्च को कैरी ऑन किया। ओके, लेट्स सी। अब देखिए इस पेपर के आखिर में मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए लिमिटेशन एंड फ्यूचर रिसर्च। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि दिस स्टडी सफर्स फ्रॉम सीवर लिमिटेशंस। अब इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। फर्स्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट TIMSS questionnaire included quite a few aspects of school working environment। इसका मतलब है कि वर्किंग एनवायरनमेंट को तो लिया गया, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स को लिया गया, सारे एस्पेक्ट्स शामिल नहीं किए गए। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर ढूंढना पड़ेगा कि स्कूल वर्किंग एनवायरनमेंट में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व हैं जो, ठीक है। Some of those included in the vast body of literature in the field could not be considered, जो अब इसने कंसिडर नहीं कर सका। ये इसकी मजबूरी समझ लें या इसकी लिमिटेशन थी कि इसने इसको किसी वजह से इंक्लूड नहीं किया। Moreover, as this study implied data from the 8th grade mathematics teachers in Sweden, स्वीडन में देखिए काम हुआ और 8th ग्रेड टीचर्स को लिया गया, और वो भी मैथमेटिक्स की टीचर्स को। तो आप इसी तरह और टीचर्स के भी ले सकते हैं। The generalizability of the result may be limited to this particular group of teachers। अब कहते हैं कि जो रिजल्ट इससे निकले हैं वो तो माइट बी कि सिर्फ उसी स्वीडन के टीचर जो मैथमेटिक्स थे उसके लिए तो जनरलाइज किया जा सकता है, लेकिन बाकियों के लिए। सेकेंड, the interplay between school environmental factors and various teacher characteristics is complex, and the internal structure of the relationship need to be explored in greater detail। अब देखिए इसने ये बता दिया है कि various teacher characteristics complex and the internal structure of the relationship, कि उसके अंदर रिलेशनशिप कितना हो सकता है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत मजीद अभी तक है। नीड टू एक्सप्लोर इन ग्रेटर डिटेल। इसके अलावा देखें एंड सम रिलेशंस मे बी रेसिप्रोकल। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड, a cross-sectional design of the TIMSS study may not be allowed for casual inferences. Therefore, a trend analysis of teacher job satisfaction, which would include a longitudinal components at a country level, is warranted. Finally, as a number of countries are facing large teacher shortages for many decades ahead, comparative research on factor promoting teachers' attention is highly relevant। देखिए अब इसने ये भी बता दिया है कि टीचर्स के जो मजीद मसाइल हैं, इसके साथ साथ जो इनको टीचर्स की रिटेंशन को प्रमोट करते हैं तो वो भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि इस पे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इस तरह का एक और आर्टिकल लेते हैं। सपोज ये एक आर्टिकल है, इसका मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, टीचर्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखें इसी के हम एंड पे चले जाते हैं, बाकी को चलो हम ज्यादा नहीं करते, अभी डिटेल में नहीं जाते। हम देखते हैं कि इसका जो रिकमेंडेशन है, देखिए कंक्लूजन्स में या तो आपको बात मिलेगी या रिकमेंडेशंस में। अब देखिए इसको अगर आप पढ़ें, टीचर सेटिस्फैक्शन इज क्रूशियल टू देयर टीचिंग परफॉर्मेंस। द टीचर्स वेरी हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन स्कूल heads provisions and job security is contributory factor to their work performance। सीधा सारा पढ़ लें। अब द स्टडी रिकमेंड्स, अब देखिए इसने यहाँ रिकमेंड किया है that school heads minimize their supervisions on their teachers teaching performance but maximize their concern over the welfare of the teachers। School human resources department officers have to include in their teacher retention strategies the prompt payment of salary, teachers welfare packages and the provision of essential amenities to ensure job security in public elementary schools। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो मजीद इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से आप अपने टॉपिक को इनिशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी कि ये काम वाले हुआ है लेकिन इसमें ये चीज़ें रह गई थी, इसलिए इसको आप मजीद जो है आप रिसर्च करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। तो इसको आप अपने सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करके इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वो स्टडी गैप्स होते हैं जिनकी बेस पर आप अपनी स्टडी को खड़ा करते हैं, ठीक है, या जिस पर आप अपना स्टैंड करते हैं कि हाँ अब मुझे इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, ठीक है।
तो जब भी अक्सर स्टूडेंट से जब ये सवाल किया जाता है कि ये टॉपिक आपने क्यों लिया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता। तो ये वो स्टडी गैप्स हैं जो आप किसी भी रिसर्च पेपर से ले सकते हैं। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, ऐसे पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये इस पे कितना काम हो चुका है? तो पाकिस्तान में HEC की जो रिसर्च रिपोजिटरी है, उसमें आप जाएं, बहुत सारे थीसिस पढ़े हैं, बहुत सारी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है, लमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की है। इस तरह हर मतलब लाइब्रेरी किसी भी यूनिवर्सिटी के पास है तो उनके पास डाटा जरूर होता है, तो आपको उससे रिलेटेड कंसर्न थीसिस मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि इस पे कितना काम हो चुका है। ठीक है, अब जब ये आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, अगर कहीं और काम हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है, वो सारा आपने नोट कर लेना है और उसको अपने फिर बाद में थीसिस में कोड करना है कि जी जो मैं काम कर रहा हूँ। माइट भी ऐसा होता है जो अभी आपने पेपर निकाला, ये हो सकता है किसी और बंदे ने काम कर दिया, तो इस पे मजीद फिर सर्च किया जाता है कि कहीं ये टॉपिक अभी तक हो तो नहीं चुका। ऐसे नहीं कि जो आपको तो अभी मिला है, लेकिन माइट भी इस पे कोई बंदा ऐसे काम कर चुका हो। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने टॉपिक्स को फिर मिनिमाइज करना है। ठीक है, मतलब नैरो डाउन करना है, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि ये टॉपिक अभी तक रिसर्च नहीं हुआ, तो तब इस टॉपिक को आप बना सकते हैं टीचर की फिर इसको देखें कि आप किस एरिया में करना चाहते हैं, कौन सा एरिया आपके लिए फिजिबल है, कहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। तो ये फिर आपकी अपनी फिजिबिलिटी है, लिमिटेशंस को सामने रखते हुए आप अपने टॉपिक को फाइनल कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ योर सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह अपने अपने टॉपिक को फाइनल करना है। ठीक है, या अपना रिसर्च टॉपिक किस तरह आपने फाइनल करना है। ठीक है, तो रिसर्च रिपोजिटरी के अलावा आप मुख्तलिफ जर्नल्स को भी देख सकते हैं। जर्नल के अंदर जो है वो आर्काइव्स के पोर्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते हैं। और मज़ीद अगर आपने आर्टिकल देखना है तो उसके लिए आप HEC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से लिस्ट ऑफ जर्नल्स निकालें और उन जर्नल्स की वेबसाइट पे जाकर और आप उनकी आर्काइव्स में फिर जाके और जर्नल्स को सर्च करें। तो आपके जो मतलब के होंगे, जो आपसे इंटरेस्ट जिसमें आपकी होगी, उनको आप डाउनलोड करें आर्टिकल्स को और उनको फिर इसी तरह स्टडी करें, तो आपको रिकमेंडेशंस या फ्यूचर रिसर्चेस या कंक्लूजन में आपको अपना टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये ना सोचें कि जी डायरेक्ट आपको टॉपिक मिल गया। हाँ, अगर आपको कोई देखें टीचर सम टाइम काम कुछ कर चुके होते हैं या किसी वजह से उनके स्टूडेंट ने नहीं किया होता, तो वो जब आपको टॉपिक दे देते हैं तो आपको ये लाजमी इंश्योर करना चाहिए कि कितना इस पे काम अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, इनको यूटिलाइज करके आप अपना टॉपिक जो है वो फाइनल कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स आज का मेरा लेक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉपिक हम कैसे फाइनल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ये भी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से अपना टॉपिक जो है अभी भी सर्च कर लेंगे। मज़ीद आप अगर उसमें देखें कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ताकि आने वाली मज़ीद रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है या जो भी मैं आपकी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह वो आपको मिलेगी और आप एक अच्छी रिसर्च है वो कर सकेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।